Unit-1. Hazrat Muhammad saw an embodiment of justice. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुजस्समा द Hazrat Muhammad's saw life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना है जो अपनी इनफरादी और मुआशरती ज़िंदगी में नेकी, तक़वा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। लोग ज़िंदगी के अखलाक़ी, रूहानी और समाजी मैदानों में कमाल हासिल करने के लिए उनकी ज़िंदगी के पैगाम और रहनुमाई से रोशनी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी अमली मिसाल के ज़रिए तमाम इंसानों के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत आला नज़रियात कायम किए हैं। Hazrat Muhammad saw practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंसाफ पसंद और कोई नहीं हो सकता। एक नौजवान ताजिर के तौर पर उसने एक ईमानदार, मुंसिफाना और इंसाफ पसंद कारोबारी आदमी होने की अच्छी शोहरत हासिल की। वो हमेशा तमाम लोगों के साथ मुंसिफाना सलूक करता था। जब कबा की तामीर हो रही थी तो हजर अस्वद के बारे में लोगों में झगड़ा हो गया। उन्होंने हजर अस्वद के क़याम के लिए इंतहाई मुंसिफाना मंसूबा का मशवरा दिया। इससे सब खुश हुए और उन्हें कबायली तनाज़ा से बचाया। As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed, or race. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zayn, R.A., to intercede on her behalf. Hazrat Usama, R.A., requested the Rasul, Saw, to forgive her. The Rasul, Saw, very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. During the sermon, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu the Lba sitting there stood up and pointed toward them and said, O Rasul of Allah! Their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. The Rasul, Saw, replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से उसने रंग, नस्ल से कत नज़र तमाम मुकदमात का फैसला अदल इंसाफ के साथ मेरिट पर किया। एक दफ़ा कुरैश की एक औरत चोरी की मुजरिम पाई गई। कुछ लोग इसे अजाब से बचाना चाहते थे ताकि कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त बच सके। उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैन रज़ी अल्लाह अन्हु से दरख्वास्त की कि वो उनके हक़ में शफ़ाअत करें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआफ़ी की दरख्वास्त की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गुस्से से फरमाया कि बनी इसराइल उसकी वजह से तबाह हो गए। उन्होंने गरीबों पर कानून नाफिज किया और अमीरों को मुआफ़ कर दिया। आपने उनकी तरफ इशारा किया और फरमाया, या रसूल अल्लाह! उनके आबाओ अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल किया। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसके बदले में उनमें से एक को फांसी पर लटका दिया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। The Rasul, Saw, was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah, if they come to you, either judge between them or decline to interfere. And you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them.
for Allah loves those who judge them in equity. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अदल व इंसाफ के लिए इस कदर मशहूर थे कि यहूदी भी, जो अब के सख्त दुश्मन थे, अब के पास अपने सूट लेकर आए और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी कानून के मुताबिक मुकदमात का फैसला किया। उसने अल्लाह के इस हुक्म की सख्ती से तामील की, अगर वो तुम्हारे पास आएं तो उनके दरमियान फैसला करो, मुदाखलत से इनकार कर दो, तुम्हारे इनकार में वो तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर तुम फैसला करो तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करो। अल्लाह के लिए इनसे महब्बत करता है जो उनका इंसाफ से फैसला करते हैं। Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. All of his life Hazrat Muhammad judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. It is reported by Hazrat Ali, R.A., that Allah's Rasul said to him, "When two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other, it is most likely that you will know the truth." Hazrat Muawiyah, R.A., reported Allah's Rasul as saying, "Any ruler, or judge, who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute." इंसाफ का तकाजा है कि उसे हर हाल में बरकरार रखा जाए, खा ये किसी के अपने नफस या किसी के ख़ानदान और रिश्ते के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। हज़रत मोहम्मद सुआद ने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के मामलात में इंसाफ के साथ फ़ैसला किया और अपने साथियों को इंसाफ करने का हुक्म दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब तुम्हारे पास दो आदमी फ़ैसला के लिए आएँ तो कभी एक के हक़ में दूसरे की दलील सुने बग़ैर फ़ैसला ना करो, गालिब इम्कान है कि तुम फ़ैसला करो। हकीकत जानो। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हाकिम काज़ी गरीबों, मिस्कीनों और मिस्कीनों पर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है, अल्लाह ताला इस पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है जब वो मोहताज हो जाता है। While Hazrat Muhammad was on his deathbed, he proclaimed, "If I own something to anyone, or if I wronged any person, or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here, he may take revenge on me in this world." There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर पर थे तो अपने ऐलान फरमाया कि अगर मैं किसी की मलकियत में हूँ, मैंने किसी पर जुल्म किया हो, किसी के माल इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया हो, तो मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त और मेरा माल हाजिर है। इस दुनिया में मुझसे बदला लेना मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरहम का मुतालबा किया जो उसे अदा कर दिया गया। Allah's Rasul proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. He decided every case brought to him, by friend or foe, with justice, without fear of favor. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad you have good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day, and remembers Allah much. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से साबित किया कि उनसे बढ़कर कोई भी इंसाफ के लिए साबित कदम नहीं हो सकता, खा वो इसके अपने मुफाद के ख़िलाफ़ हो या अपने करीबी अजीज़ों के मुफाद के ख़िलाफ़ हो। इसने अपने पास लाए हुए हर मुकदमे का फ़ैसला दोस्त या दुश्मन के ज़रिए इंसाफ के साथ बग़ैर किसी खौफ के। इतनी वसत वाला शख्स ज़मान व मकान की रुकावटों को अबूर करता है। हर उम्र के लोग उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तलाश कर सकते हैं ताकि उन्हें अपनी सरगर्मियों के मुख्तलिफ शुबों में रहनुमाई फराहम की जा सके। कुरान करीम ने आपकी ज़िंदगी के इस पहलू का वाज़े तौर पर तज़किरा किया है। यकीनन आपके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है जो अल्लाह और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करता है।
Happy learning!